थे उसके अंदर ये था that is accounting for marketable securities, fine, from the book of Meeks and Meeks. Then I have discussed with you that is the accounting of note receivables, fine, and I think so that I was discussing with you the concept of that is accounting for account receivable, in which I have discussed with you the concept of direct right of approach as well as the allowances approach, fine. So you are requested to please some of the student Bakar, ठीक है, प्लीज भाई अपना अपना कैमरा ऑफ कर लें, ठीक है, अपना कैमरा ऑफ कर लें एंड ट्राई टू लिसन द थिंग्स वेरी क्लियरली। ये मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? अच्छा चल, अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये काइंडली ये जो बाकी के लोग हैं ना जो अपने कैमरास पे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें कैमरास को ऑफ कर लें और मेरी बात को गौर से सुने ताकि जो है वो मामला अब आगे की तरफ चले, प्लीज। ठीक है जी, तो इसमें हमने जो है वो क्या किया था कि I have discussed with you the accounting for marketable securities, then I have discussed with you the concept of accounting for note receivable, as well as I have discussed the two approaches of the allowances for doubtful account, in which one is the direct right of approach and second is the allowances approach. तो ये मैंने कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस की थी with respect to you can say that the course of this accounting, okay? एक्चुअली मुझे जो स्टार्ट लेना चाहिए था आपका वो लेना चाहिए था अकाउंटिंग फॉर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ओके? क्योंकि इसमें मैंने आपको लेआउट दिया था और वो लेआउट हमारा बुनियादी तौर पे ये था कि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं दैट इज तरतीब के साथ तमाम बैलेंस शीट के कंपोनेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है कैश इन हैंड, देन वी हैव टू डिस्कस द कैश एट बैंक, देन वी हैव टू डिस्कस द नोट रिसीवेबल, देन वी हैव टू डिस्कस द अकाउंट रिसीवेबल, and then we have to move toward the inventory. In this way our current asset section will be over, okay? But I have taken the start from the accounting for marketable security, so I have left the one topic that is the cash in hand and cash at bank, okay? So today I am going to discuss with you the same concept, that is cash in hand and cash at bank. So with respect to the cash in hand, what we are required to do it, that we are required to maintain you can say that is a cash book. We are required to prepare a cash book just in order to keep the record of the inflow and outflow of cash on daily basis or the inflow and outflow of a cash on monthly basis, okay? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है बुनियादी तौर पे how we can prepare a cash book. There are three sorts of the cash book we have. One is called as that is your single column cash book, fine. Then we have a two column cash book and then we have a three column cash book, fine. What actually a single column cash book is? Single column cash book is a cash book where we have a one column on the left hand side of the cash book and where we have a one column on the right hand side of the cash book, which is simply going to indicate the column of the amount. So whenever your cash is going to be increased, it should be reported on the left. Whenever your cash is going to be reduced, it should be reported on the right, fine. So I think so that you people will be fully aware with the rules of debit and credit, because I spent a lot of time in your class just in order to revise the rules of debit and credit. And if the rules of debit and credits are not yet clear, then you will have to go through these concepts at your own. Otherwise, it is difficult for you to pass this course, okay? So in single column cash book, we have a one column on the left hand side and we have a one column on the right hand side. So if your cash is going to be increased, it should be reported on the left, and if the cash is going to be reduced, it should be reported on the right, fine. Then in two column cash book, we have a one more column, that is the column of the discount. Discount on the left hand side and discount on the right hand side, okay? So the discount on the right hand side is going to indicate the discount received, fine. However, you can say that the discount on the left hand side is going to indicate that is the discount allowed, that is the discount allowed, okay? अब इसके अंदर जो important element है that is in two column cash book, what is going to be happen that we are having a two column on the left and two column of the right. So one column which we have added in the two column cash book is that is the column of the discount. But remember that we are required to use this column at that point in time if we have a tendency to offer the discount to our valuable customer. If we are going to offer the discount to our valuable customer,
This is called as what? That is discount allowed. And if we are going to receive a discount from the supplier, this is called as a discount received. This is called as a discount received. Okay. Then we have a 3-column cash book where we have a 3 columns. One, that 3 column on the right hand side and 3 column on the left hand side. And these 3 columns are, that is discount, cash, and bank. And the 3 column on the left hand side, that is discount, cash, and bank. अब इसमें 3 column cash book में we have added the element of the bank. Why we have added the element of the bank? That if you are having some of the cash in your bank, fine, and some of the cash you are going to manage in your pocket, so then you must have to keep the record of this thing, that what part of the cash has been, you can say that, deposited into the bank, and what amount of a cash which you have, what amount of cash that was available in the bank to whom you have used. Okay, so ये चीजें हैं. I will show you the real picture of this one, that is the 3-column cash book, and then this issue will be clear to you. Okay, what actually I am saying. Okay, so right now we are having 40 students, I think so. That is the strength of the class is of 66. So mashallah, I think so that is 2/3 of the people are available. So I have no problem. Fine, I may continue this. You can say that activity. Those people who are not going to join it, they may not be able to learn the thing. So try to be sincere with yourself, fine, and to do the work on regular basis so that you will be able to learn the concepts. Okay. भाई शोएब इकबाल, अभी जरा कैमरा ऑफ कर लो थोड़ा सा मेरा बच्चा. हाँ, शाबाश, चलो. जी, मुझे कंफर्म करेंगे कि आप लोगों को ये नजर आ रही हैं. स्लाइड्स मैंने भी शेयर की हैं, वो आपको कुछ नजर आ रही है? चलें, ओके, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, इसमें मैं ये जो है ये आपके साथ जो है ये डॉक्यूमेंट शेयर भी करूंगा. ठीक है, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट एज वेल. तो अभी सिर्फ मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता हूँ. दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अ कैश बुक. ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. दिस इज द कैश बुक ऑफ द पाकिस्तान प्रिंटिंग सर्विसेज एंड आई हैव यूज्ड द टर्म ऑफ 3 कॉलम कैश बुक. और इसमें हमने लिखा दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, so we have mentioned the name of the company as per the entity concept. Okay, and then what we are going to prepare, that is the what we are going to prepare. We are going to prepare the 3 column cash book, and then as per time period concept, I have mentioned the time period. So this is the cash book of the 2020. ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है बुनियादी तौर पे वो वहां से था कि that is first of all we have to go for the accounting of that is cash in hand. तो कैश इन हैंड की अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे क्या होती है कि वी आर रिक्वायर्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कैश, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैश बुक. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज we can prepare a single column cash book, we can prepare a 2 column cash book, and we can also be able to prepare a 3 column cash book. Fine. So I have shown you the picture of the 3 column cash book. Fine. Where we have the first, on the left hand side is a debit. Fine. The left hand side is my debit and the right hand side is my credit. Okay. So debit side के ऊपर अगर आप देखेंगे तो we are having a column of date, then we have a description, then we have a post reference, then we have a discount. Fine. So this discount is called as a discount allowed. This is called as a discount offered by Pakistan Printing Services to its valuable customer, and this discount is also called as, that is your discount debit भी इसको हम कहते हैं. Okay, this is the discount allowed offered by the company. Okay, then we have the column of cash, then we have the column of bank. ठीक है, अब आप इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर आप बैंक के साथ डीलिंग नहीं करते, ठीक है, तो आपको बैंक का कॉलम लेने की जरूरत नहीं. ओके, अगर आप ना किसी को डिस्काउंट देते हो ना किसी से लेते हो तो आपको डिस्काउंट का कॉलम लेने की भी जरूरत नहीं. फिर आपको किस कॉलम की जरूरत होगी? ओनली द कॉलम ऑफ कैश. तो जब हम कैश कॉलम को राइट पे लेते हैं और कैश कॉलम को लेफ्ट पे लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल कॉलम कैश बुक. ओके, लेकिन ये है कि अगर हम कैश के साथ अगर डिस्काउंट को लें राइट और लेफ्ट के ऊपर तो दिस इज कॉल्ड एज 2 कॉलम कैश बुक. लेकिन अगर हम इसमें बैंक के कॉलम को भी राइट लेफ्ट पे ले लें तो दिस इज कॉल्ड एज अ 3 कॉलम कैश बुक. बट यू आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ दिस बैंक कॉलम एट दैट पॉइंट इन टाइम.
if you are going to maintain some bank account, अगर आप बैंक अकाउंट है तो आप बैंक कॉलम को लेंगे, ठीक है। Second important thing is that why I am going to discuss with you this concept. Remember that you people may not be able to understand the concept of bank reconciliation statement without understanding the 3-column cash book. If you have a clarity of the 3-column cash book, there will be no problem in your bank reconciliation statement. Okay. Otherwise, you may not be able to understand what is the meaning of this bank reconciliation statement is. Okay. तो इसमें देखिएगा कि ये हमारे पास है, इसमें हमने एक शॉर्ट सा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा इसमें स्क्रीन पे। वो कहता है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 3-column कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको रिकॉल कीजिएगा कि वाई कैश इज गोइंग टू बी डेबिट एंड वाई कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक 5000 एंड बैंक 8700, ठीक है। So this is going to indicate that when we have started the journey or when we have started the business at that point in time in January 1, what was having, that is we were having some of the cash in our pocket and some of the cash was available in the bank. तो देखिएगा हमने इसको कैसे रिपोर्ट किया है कैश बुक के अंदर। तो हमने कैश बुक के अंदर लिखा, डेट लिखी जनवरी 1 और उसमें लिखा बैलेंस है ये हमारा और 5000 हमारा कैश है और कैश इन हैंड है। This 5000 is basically the cash in hand and 8700 is basically this is the cash at bank. This is the cash at bank. Okay. अब next transaction देखिएगा। Second transaction is purchase printing machine from Pakistan Engineering worth 6000. Check number 101 2000 having a worth of 2000 issued and signed a note of the balance amount. ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को आप गौर से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड ट्रांजैक्शन वेयर मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन इज गोइंग टू बी डेबिट बाय 6000, ओके। हाउएवर योर बैंक इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 2000 बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट वाया बैंक, सो देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द बैंक बाय 2000, ओके। और जो बाकी का चीज है वो कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट का हमने उनके साथ जो है वो नोट साइन किया है, तो नोट्स पेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 4000, ओके। ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अब हमने इसमें से देखना है कि व्हाट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज मेंट फॉर दिस 3-column कैश बुक। तो 3-column कैश बुक के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एक है और वो क्या है कि 2000 से हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है तो वी हैव टू शो अ रिडक्शन इन द बैंक अकाउंट, ओके। बाकी के जो एलिमेंट है उसकी कैश बुक के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप इसको गौर से देखिएगा। तो हम जनवरी 2 को प्रिंटिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं जिसके प्रोसेस में हमने पेमेंट की है 2000 रुपीज की। सो बैंक इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन आवर बैंक अकाउंट सो दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज द बैलेंस इन द बैंक, ओके। तो ये बुनियादी तौर पे था, ओके जी। अब तक की जो मैंने बातें डिस्कस की हैं, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। अब तक की जो मैंने बातें की, प्लीज ऑन योर माइक, अपने माइक ऑन करो और 1 by 1 कम अप विद। ये बात समझ लग रही है? आफ्ताब हुसैन, यू वुड लाइक टू से समथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये प्रिंटिंग मशीन हमने परचेज की, इसमें 6000 हम कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे? नहीं बेटा, बात ये है ना कि वो कहता है कि आप इस चीज का ख्याल करो कि आप क्या बनाने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कैश बुक। तो कैश बुक के जो कॉलम है सिर्फ उन कॉलम से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे पुट होगी। रिमेंबर दैट कैश बुक बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है हम फ्लो ऑफ कैश को चेक करना चाहते हैं कि व्हाई कैश इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड व्हाई कैश इज गोइंग टू बी रिड्यूस, ओके। बट इफ यू आर नॉट ओनली गोइंग टू मेंटेन द कैश इन हैंड बट आल्सो द बैंक अकाउंट, तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि व्हाई योर बैंक इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड व्हाई योर बैंक इज गोइंग टू बी रिड्यूस। तो अभी तो हमने 6000 रुपए की मशीन उससे खरीदी है, ठीक है, लेकिन पेमेंट उसे कितनी कर रहे हैं? ओनली 2000 रुपीज। और वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वाया बैंक कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट उसे वाया बैंक करेंगे तो इसका मतलब है योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। तो बाकी की चीजें कैश बुक का हिस्सा नहीं है बट दे आर द पार्ट ऑफ योर जर्नल एंट्री, दे आर द पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। अभी हमने सिंपली ये देखना है कि हाउ वी कैन मैनेज द कैश अकाउंट, ओके। ओके सर जी, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? जी
भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शैल आई मूव फॉरवर्ड? क्या मैं आगे चलूं? अगर अपने माइक तो खोल लें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने कहा है कि अपने माइक खोल लें, मैं आगे चलूं? यस सर। चलो अच्छी बात। चलो ये नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ रही है। यस सर। शाबाश शाबाश, ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, ये अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, अपना माइक ऑफ करें। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपने माइक ऑफ करें प्लीज। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में हमारे पास जो, एक्सक्यूज मी, अच्छा नेक्स्ट में देखिएगा जी, नेक्स्ट में हमारे पास है दैट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज प्रिंटिंग सप्लाईज। ठीक है, विद परचेज प्रिंटिंग सप्लाईज ऑन कैश 500। तो 500 की हम प्रिंटिंग सप्लाईज खरीदने जा रहे हैं। तो अगर आप कैश बुक में देखेंगे तो हमने क्या किया, दैट इज वी हैव रिड्यूस दी कैश बाय 500 और उसमें हमने डिस्क्रिप्शन दी है प्रिंटिंग सप्लाईज की। तो कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द प्रिंटिंग सप्लाईज। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जी। जी नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है प्रिंटिंग वर्क परफॉर्म एंड रिसीव्ड कैश 2000। ठीक है, सो वी दिस कंपनी हैज रेंडर्ड द सर्विसेज टू समवन एल्स एंड दे have received a cash in this process, so mean that cash is going to be increased due to service revenue। तो इसमें देखिएगा 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है, तो हम कैश बुक के डेबिट साइड पे लिख रहे हैं 2000 रुपीज। ओके, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द सर्विस रेवेन्यू, ड्यू टू द सर्विस रेवेन्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज दैट इज प्रिंटिंग वर्क डन फॉर एबीसी एंड कंपनी ऑन अकाउंट। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, दैट इज वी हैव रेंडर्ड द सर्विसेज ऑन अकाउंट। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, वन इज योर अकाउंट रिसीवेबल, सेकंड इज योर सर्विसेज रेवेन्यू। तो इसका मतलब है दिस ट्रांजैक्शन डज नॉट पर्टेन टू दिस कैश बुक बिकॉज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, नीदर द कैश इज गोइंग टू बी इंक्रीज नॉर द कैश इज गोइंग टू बी रिड्यूस, सो नो नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कैश बुक ओनली कंटेन दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर रेलेवेंट टू द कैश, आइदर योर कैश इज गोइंग टू बी इंक्रीज और योर कैश इज गोइंग टू बी रिड्यूस। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का कहीं इफेक्ट हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब जनवरी 15 को जरा गौर से देखिएगा क्या कहते हैं। ABC has issued a check of 975 in favor of Pakistan Printing Press in settlement of their account। यानी कि हमने उस पार्टी से 1000 रुपया लेना था। ठीक है, तो हमने उस पार्टी से 1000 रुपया लेना था, तो उस पार्टी ने हमें जो है वो 975 रुपीज का चेक दे दिया है और हमने कहा कि चलो ठीक है, आपका हमारा अकाउंट सेटल हो गया। तो टेक्निकली यू कैन से दैट टेक्निकली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, that is this this Pakistan Printing Press is going to offer a discount of $25। okay, तो इसमें देखिएगा जी ये ABC एंड कंपनी है। ठीक है, और उसका जो अभी चेक रिसीव हो रहा है और वो हम कैश के कॉलम में लिख रहे हैं 975 और 25 का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज टोटल अमाउंट जो हमारी बनती है यहाँ पे 1000 की थी। अब जरा एक और भी चीज जो इसमें हमने पढ़नी है बुनियादी तौर पे इसी ट्रांजैक्शन के नीचे, कि उसने कंपनी की पॉलिसी भी दी हुई है। ठीक है, वो कंपनी की पॉलिसी ये है कि चेक रिसीव फ्रॉम एनी पार्टी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट इन नेक्स्ट वर्किंग डे। इसका मतलब ये हुआ, कंपनी की पॉलिसी ये है कि जब उनको कोई भी किसी किस्म का चेक मिलता है तो वो चेक को पहले अपनी जेब में रख लेते हैं। जेब में रखने का मतलब ये है कि दैट इज दे आर गोइंग टू ट्रीट इट जस्ट लाइक अ कैश। हाउएवर इट इज नॉट अ कैश, दे हैव टू डिपॉजिट दिस चेक इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस। ओके, तो अभी हमने चेक रिसीव किया था, तो जैसे चेक रिसीव किया तो हमने कैश के कॉलम को इंक्रीज किया है, 975 से हमने कैश को डेबिट किया था। ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे क्या है कि दिस इज अ चेक। अब कंपनी की पॉलिसी ये है कि दे आर गोइंग टू डिपॉजिट द सेम चेक इनटू द बैंक अकाउंट इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। जी अब देखिएगा नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा 16 बनता है, तो हमने जो बैंक कॉलम है उसमें 975 लिखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के कॉलम में लिखा है कैश। इसका मतलब है हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है बाय 975, लेकिन ये कहां से आया कि वो पैसे जो हमने अपनी जेब में रखे थे, वी हैव डिपॉजिटेड द सेम मनी इनटू द बैंक। और दूसरी साइड पे देखिएगा कि अब हम जो है कैश अकाउंट को 975 से रिड्यूस कर रहे हैं
और हम कह रहे हैं कि दिस कैश इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बिकॉज वी हैव डिपॉजिटेड दिस मनी इनटू द बैंक। और अगर पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में देखें तो वर्ड CC आ रहा है, तो दिस C is going to indicate a contra transaction. Contra transaction basically means a transaction which is becoming a cause of addition in one account, however reduction in another account. तो हमने क्या किया, जब हमने चेक रिसीव किया था, चेक को जेब में डाला था, अब उसी चेक को जेब में से निकाला है और बैंक के अंदर जमा कराने जा रहे हैं। पहले हमने इसको कैश ट्रीट किया था, नाउ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द कैश एंड देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द बैंक। तो ये बुनियादी तौर पे ना से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, एनी क्वेश्चन? यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ये अपने माइक्स को ऑन कर लें, अगर आपको कोई इशू है तो कम अप विद द क्वेश्चन। सर जनवरी 12 वाली एंट्री समझा दे सर। मुजम्मिल क्या कहते हैं आप? सर ये एंट्री दोबारा समझा दें। बेटा दोबारा के अंदर क्या समझा रहे हैं, होश के साथ बैठे ना आप। जो आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उसे कहेंगे मुझे ये बात समझ लगी और ये नहीं समझ लगी, ये कोई तरीकेकार नहीं है। इसको दोबारा समझा रहे हैं, इसको आगे से समझा रहे हैं, इसको पीछे से समझा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको इसमें पॉइंट क्यों नहीं आपको क्लियर हुआ। दोबारा से इसको देखिएगा। कंपनी ने पहले एक ट्रांजैक्शन आती है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान प्रिंटिंग सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू ABC कंपनी ऑन अकाउंट, कि उसने क्रेडिट पे सर्विसेज दी हैं, ठीक है। लेकिन अब क्रेडिट का हमारे पास यहाँ पे कोई अकाउंट ही नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मैनेज द कैश अकाउंट, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये आई कि जिस पार्टी को हमने क्रेडिट पे सर्विसेज दी थी उन्होंने हमें चेक दे दिया। अब हमने उनसे लेने थे 1000, उन्होंने हमें दिए 975। इसका मतलब है 25 का हम उन्हें डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सिर्फ बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब आप चेक रिसीव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता, आपको उसको डिपॉजिट करने के लिए बंदे को भेजना पड़ता है। आपको उसको डिपॉजिट करने के लिए बंदे को भेजना पड़ता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट यू आर गोइंग टू हेल्ड द कैश, फर्स्ट यू आर गोइंग टू हेल्ड द चेक इन योर कैश अकाउंट and then you will have to release the check from cash account and then you have to deposit it into the bank. तो पहले हमने चेक लिया तो हमने कैश अकाउंट को इंक्रीज कर दिया बाय 975 से, ठीक है, और हमने डिस्काउंट लिखा 25 का। फिर हमने इसी चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर दिया बाय 975 से और कैश अकाउंट को रिड्यूस कर दिया बाय 975 से, बिकॉज वी हैव टू कंप्लाई द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। यस, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? जी, उबैदुर रहमान अपना कैमरा बंद कर दो। सर ये एंट्री 12 जनवरी वाली एंट्री हैं जी, जनवरी 12 वाली एंट्री सर। जनवरी 12 वाली एंट्री, अब तो आप क्या कहते हो? हाँ, प्रिंटिंग वर्क। यार मेरी बात को गौर से नहीं सुना, नहीं मैं नहीं इसको रिपीट करूंगा, आप होश के साथ नहीं सुन रहे। ओ भाई उधार पे दे रहे हैं तो उधार का कोई अकाउंट है कैश के अंदर? ट्रांजैक्शन क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो बताओ अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड कहाँ पे करूं कैश के अंदर? नहीं होगा सर। आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से पुअर हैं तो आप कैसे चलेंगे? बड़ी मुश्किल है आप लोगों के साथ चलना। चल बेटा आगे देखें। एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी क्वेश्चन? चले जी, नेक्स्ट में अब मैं मूव कर रहा हूं आगे, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा और देखिएगा, अब चीजें और कॉम्प्लेक्स होंगी, आसान नहीं होंगी, ठीक है। अब वो कहता है कि उसने जनवरी 16 को कहा था द चेक ऑफ ABC कंपनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब जनवरी 18 का ट्रांजैक्शन देखें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जॉन एंड सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट $500, ठीक है। अब हमें चेक मिल रहा है 500 रुपए का मिस्टर जॉन के साथ। अब ये नहीं बताया कि जॉन को हमने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन हमें चेक मिल रहा है, ठीक है। अब कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप द चेक इन कैश अकाउंट, देन इन द नेक्स्ट डे दे विल हैव टू डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक। तो अभी जब जनवरी 16 को हमें क्या चेक मिल रहा है तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, 500 से कैश अकाउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ एंड दिस चेक इज गिवन बाय मिस्टर जॉन एंड दैट इज एन अकाउंट रिसीवेबल, ओके। अब 19 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ कि जॉन के चेक को डिपॉजिट करा रहा हूँ बैंक में। तो इसका मतलब है नाउ देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द बैंक बाय 500 एंड देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द कैश बाय 500। तो मैंने बैंक को जो है 500 से इंक्रीज कर दिया, जबकि मैंने अपने कैश अकाउंट को 500 से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मसला होने जा रहा है और वो मसला ये है कि जनवरी 22 को
Bank issued an intimation that the check of Mr. John has been dishonored due to NSF. It means that not sufficient fund. अब जॉन ने हमें चेक दिया, उस चेक को पहले हमने अपनी कैश में रखा, फिर हमने उस चेक को उठाया, बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक को इंक्रीज किया और कैश को रिड्यूस किया। अब बैंक कहता है कि जनाब मिस्टर जॉन के अकाउंट में तो पैसे ही कोई नहीं है। इसका मतलब है द बैंक इज नॉट रेडी टू ट्रांसफर द मनी इन योर अकाउंट, so definitely now you will have to return it back this check to home to Mr. John. So now there is a need to reduce the bank by 500. Now there is a need to reduce the bank by 500. तो अब आप इसको जरा गौर से देख, जो है वो डिसऑनर्ड चेक हो रहा है और जिसमें अकाउंट रिसीवेबल दोबारा से जन्म ले लेंगे, ठीक है, और वो हमारा जो है 500 से बैंक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है। इसको गौर से देखिए, सबसे पहले हमें चेक मिला, हमने कैश अकाउंट में रखा, फिर उसके बाद हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, तो वी हैव इंक्रीज द बैंक एंड वी हैव रिड्यूस द कैश अकाउंट। ओके, अब बैंक ये कहता है कि जनाब इस पार्टी के अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो बैंक विल रिटर्न इट बैक द चेक टू अस। तो इसका मतलब है देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द बैंक एज वेल बाय 500। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन विल बी यू कैन से दैट यू विल हैव टू टैकल द सेम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन योर बैंक रिकॉन्सिलिएशन एज वेल। ओके जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कहते हैं चेक ऑफ 3500 इशूड टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। जी, अब हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग से मशीन ली थी 6000 की, जिसमें से 2000 की हमने पेमेंट कर दी थी वाया चेक, और बाकी की बैलेंस हमारा बचता है 4000 रुपए का। लेकिन 4000 रुपए में से अब हम उन्हें 3500 रुपए का चेक जारी कर रहे हैं और उनका हमारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, तो टेक्निकली वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिसीव द डिस्काउंट इन दिस प्रोसेस। तो ये हमें डिस्काउंट रिसीव भी होगा। तो देखिएगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग में हम बैंक अकाउंट को 3500 से रिड्यूस कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्काउंट एज वेल, दैट इज ऑफ 500। ओके, उसके बाद अब हमारे पास सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, और वो सिंपल ट्रांजैक्शन बुनियादी तौर पे क्या हैं जी, पेड रेंट फॉर द मंथ 400 है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, और फिर हम वेजेस पे कर रहे हैं डिफरेंट डेट को, 28, 29 और 30 को। तो इसका मतलब है योर कैश अकाउंट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। तो आपका जो कैश अकाउंट है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू रेंट एक्सपेंस 400 से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 200 से और वेज एक्सपेंस हमारा 600 से है। जब आप तमाम ट्रांजैक्शंस को इसमें ले लेंगे, सबसे पहले मेरा बेटा, सबसे पहले जो है ना हम डेबिट साइड के टोटल करेंगे। ओके, तो हमने कैश का टोटल किया 5000 जमा 2000 जमा 975 जमा 500, तो इसको सारे को सम अप करोगे तो 8475 आएगा। और बैंक के अंदर जो हमारे पैसे हैं 8700, 975 और 500, इसको ऐड करेंगे तो 10175 आ जाएंगे। ओके, अब क्रेडिट साइड पे जो हमने ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ये यूजेस को इंडिकेट कर रही हैं कि हमने कैश कहाँ पे यूज किया। तो हमने 500 की प्रिंटिंग सप्लाईज खरीदी थी, 975 रुपए बैंक में जमा कराए थे, 500 रुपए बैंक में जमा कराया था, उसके बाद हमने 400 का रेंट एक्सपेंस दिया है, फिर 200 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वेज एक्सपेंस है। तो इस तरह से हमारे कुछ एक्सपेंडिचर बनते हैं, तो इन एक्सपेंसेस को जमा करें, ठीक है, और 8475 से माइनस करें। जब आप 8475 से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास एक बैलेंस अमाउंट आएगी। सो दिस बैलेंस अमाउंट इज 5300 व्हिच वी हैव रिपोर्टेड ओवर हियर। सेम इज द केस, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से बैंक में 10175 होने चाहिए, लेकिन हमने कुछ पैसे बैंक में से यूज भी किए। 2000 रुपए प्रिंटिंग मशीन के लिए, फिर 500 रुपए का हमारा डिसऑनर चेक हुआ था, और 3500 रुपए हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग को पेमेंट की। तो इस तरह हमने टोटल इनको 5500 रुपए पेमेंट की है। तो 10175 में से अगर आप 6000 रुपया माइनस करेंगे तो आपके पास 4175 रुपया बैलेंस आएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट हाउ तो आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी बना सकते हैं। तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो सिर्फ एक कॉलम होगा ऑन द लेफ्ट एंड राइट, दैट इज द कॉलम ऑफ कैश। जब आप 2 कॉलम बनाते हैं तो यू आर हैविंग 2 कॉलम ऑन द लेफ्ट एंड राइट, one is the column of discount and second is the column of, you can say that your cash। लेकिन 3 कॉलम में तीनों कॉलम ही आ जाते हैं, तो जिसको 3 कॉलम बनानी आ जाए तो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम और हर दैट दे कैन प्रिपेयर द अदर कैश फ्लोज एज वेल। एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द बैलेंस ऑफ द डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज discount on the debit side is going to indicate an expense, however the discount on the credit side is going to indicate an income, so no need to take the difference। तो इस वजह से जो डिस्काउंट अलाउड है वो 25 ही है,
जबकि डिस्काउंट जो हमारा रिसीव्ड है वो 500 है, तो हमने इसका बैलेंस नहीं लिया, इसका टोटल लिखा हुआ है। तो बैलेंस सिर्फ हमें दो वैल्यूज का लेना है। वो क्यों कि हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द कैश वी हैव बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड व्हाट इज द बैंक अमाउंट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश व्हिच इज अवेलेबल इन द बैंक वी वांट टू टेक द बैलेंस। तो इसका मतलब हमारी जेब में 5300 रुपए होने चाहिए, तो आप अपने गले में देखें कि आपके पास 5300 हैं। इसी तरह से आपके बैंक में 4175 रुपए होना चाहिए, तो आप बैंक से कंफर्म कर ले कि आपके पास 4175 रुपए हैं, तो इट मीन दैट योर कैश बुक इज ओके। So if you are having any question, so you are welcome to ask the question up till now. जी। जी प्लीज आपने माइक्स को ऑन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अब तक आपका कितने क्वेश्चन हैं। सर प्लीज आप क्रेडिट साइड पे जो आपने कैलकुलेशन किया आप एक दफा वो रिवाइज करवा दें, क्योंकि वो लास्ट में जरा मिसिंग हो गई है कि आवाज कट के आ रही थी, इस वजह से समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आप इसको देखिएगा, वो स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? यस सर। अच्छा देखो, जो भी ख्वाजा मशहूद हैं जरा इसको देखिएगा। देखें बात यह है, सबसे पहले आपने लेना है आपका जो कैश है ना वो आपका एसेट है, तो एसेट हमेशा नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और कैश एट बैंक भी आपका एसेट है। ओके, तो इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने डेबिट का टोटल करना है। तो डेबिट हमें बताता है कि हमारे पास कैश 8475 होना चाहिए और बैंक में हमारा कैश 10,175 होना चाहिए, लेकिन हमने कैश यूज भी तो किया ना और बैंक के बैलेंस को भी यूज किया। तो कैश हमने जो यूज किया था वो 500 यूज किया, फिर 975 यूज किया, फिर 500 यूज किया, फिर 400, फिर 200, फिर 600। इसका जरा जमा कीजिएगा कितने पैसे बनते हैं। 500 जमा 975 जमा 500 जमा 400 जमा 200 जमा 600, तो ये आपके यूजेज आ जाएंगे। तो 8475 में से आप इन वैल्यूज को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 5300। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एंड बैलेंस। इसी तरह हमारे पास जो बैंक है वो 10,175 डेबिट है, लेकिन क्रेडिट पे भी कुछ ट्रांजेक्शन हैं। तो जब डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो अब हमारे पास जो बैलेंस होगा एट बैंक वो होगा 4175। जी, एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी क्वेश्चन? जी प्लीज स्विच ऑन योर माइक प्लीज। All of you are sleeping? No sir. It means that whatsoever the thing which I have discussed with you, it is clear to all of you. Yes sir. यस सर। चले, आप जरा थोड़ी सी मेहरबानी ये कीजिएगा कि मैं अभी आपको जो है ना, ठीक है बेटा मोशन समझ लगी मुझे। अच्छा, अभी ये ऐसा है कि यही जो मैंने कैश बुक बनाई है ये अभी मैं आपको वाया ईमेल जो है ना इसका पीडीएफ बना के शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको बैठ के अच्छी तरह से सॉल्व करें और इसके साथ कुछ मैं आपको नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी दी हुई है जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको भी मैं भेज देता हूँ, लेकिन आप इन चीजों को अच्छी तरह से बैठ के पढ़ो और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। सो टुमारो, सो अगेन टुमारो वी विल बी हैविंग अ क्लास एट 9। जी, गॉट इट? ओके सर, ठीक हो गया। यस सर। हाँ, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो मेरा बच्चा कल फिर हम जो है ना, हाँ कल फिर जो है ना वो अब हम जो है ना अब कंटिन्यूसली क्लासेस लेंगे, ताकि जो पिछले हफ्ते से 1 जून से हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट थी उसकी वो डेफिशिएंसी है वो मीट अप हो जाए। क्योंकि मेरे लिए जो इस वक्त आपको जो पढ़ाने का सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना वो ये है कि जो रेलिवेंट बुक में पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। अगर उसका पीडीएफ अवेलेबल हो तो दैट इज इजियर फॉर मी। अब मैं उसकी अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि किसी तरह से वो बुक से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं सो दैट आई कैन शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू एंड यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके? यस सर। Yes sir. यस सर। चलो, Yes, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। ठीक है, सो टुडे
आज हमारे पास 42 लोग हैं, 42 लोग हैं, ठीक है। तो 42 लोगों ने हमें आज की क्लास में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। 66 हैं तो बाकी के लोग भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। तो अभी आप थोड़ी देर तक अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, उस ईमेल में भी डाल दूंगा और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी मटेरियल डाल दूंगा। थैंक यू ओके, सर। अल्लाह Thank you, sir. अल्लाह हाफिज। हाफिज़ अल्लाह everyone. हाफिज़।